A very good morning to all of you. So, in the previous class, we were discussing the first chapter from the prose section, A Wrong Man in Workers' Paradise, and we discussed lots of important points in the previous session. We saw that our central character, who is an idle artist, mistakenly he goes to the workers' paradise, and there he starts feeling that he is a misfit in that paradise, because people in the workers' paradise are completely different than what he was. Right? They were constantly working and they were always hustling, they were rushing to work, and their attitude was like they don't want to, waste a single minute of their day. They wanted to utilize each and every minute of their day in order to do something useful. Okay, and our artist, who never believed in utility when he was alive on earth, when mistakenly he reaches this particular place, he starts feeling as if he is not fit for this particular place. And he keeps on roaming on the streets of the workers' paradise. He keeps on looking at people who are rushing to work, and he keeps on idling, and keeps on moving here and there. Okay, in the workers' paradise, he keeps on observing people and lounging on the streets. And suddenly he observes one girl, that every day there is a girl with messy hair who rushes with a pitcher in her hand to fill water near a torrent. And he keeps on observing that girl. And then one day, the girl looks at this idle artist, and she feels pity on him because he did not have any work to do. And she asks him that, do you want me to give you some work? Can I help you? And the man says that, can you give me one of your pictures? The girl feels as if the man is asking for the picture because he wants to fill water in it. But the man replies that, no, I do not want to fill water in this pitcher, but I want to draw pictures on this pitcher. The girl gets angry because she is not able to understand this particular, concept, that drawing pictures on a picture, right? But the man keeps on asking for the picture every day from the girl, and finally the girl gets tired and she gives in, and she hands over one of her pictures to the artist. And then we saw that the artist beautifully paints different designs and colors on that picture. And when he hands over that picture to that girl, she becomes mesmerized and she's awestruck by the beauty of the picture. And she keeps on observing the picture even at night. And she tries a lot to find out the meaning of those lines and those colors. She tries to find out purpose behind those lines and those colors. But she realizes that there is no meaning and there is no purpose in these designs and these colors. But she becomes awestruck by the beauty of that picture. And then we see the next day again the artist meets her near the silent torrent. And now he tells her that, if you allow me, I want to make a ribbon for you. I want to weave a colorful ribbon for you. And the girl again asks him that, why do you want a ribbon? Why do you want to weave a ribbon for me? And he says that, just like that. And the girl agrees. And we saw that he gives a beautifully colored ribbon to the girl, and the girl becomes, again, she is extremely pleased with the beauty of that ribbon. And now we see that there is a change in the behavior of the girl. धीरे धीरे उस गर्ल के बिहेवियर के अंदर चेंज आना स्टार्ट हो जाता है. ये गर्ल जो दिन की एक भी मिनट वेस्ट नहीं करती थी, अब वो बहुत सारे आवर्स तक मिरर के सामने अपने बाल संवारती रहती है. ये गर्ल जिसको अपने हेयर ठीक से कोम करने का भी वक्त नहीं था, नाउ शी कीप्स ऑन स्पेंडिंग आवर्स एंड आवर्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर कोम्बिंग हर हेयर. एक सेंस ऑफ ब्यूटी उसके अंदर क्रिएट हो जाती है. एंड वी सॉ कि ये जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे
वर्कर्स पैराडाइज के सभी लोग इस तरह से बनने लगे. दे स्टार्टेड बिकमिंग लेजी एंड दे स्टार्टेड डूइंग ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. वर्कर्स पैराडाइज में जो काम वो लोग करते थे उससे एकदम अलग टाइप के काम इन लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया, लाइक पेंटिंग एंड मेकिंग स्कल्पचर्स एंड ऑल दोज थिंग्स. सो वहाँ तक हमने देखा था कि इसीलिए लोग अपनी हॉबीज़ इस तरह के क्रिएटिव काम वर्कर्स पैराडाइज के लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया. और इसीलिए वर्कर्स पैराडाइज का जो दूसरे काम थे वो सारे काम पेंडिंग पड़ने लगे. वो काम अब कोई करता नहीं था, तो वो सारा काम अब अधूरा रहने लगा. सो वहाँ तक हमने देखा था. ओके, सो नाउ कंटिन्यूइंग. In workers' paradise, work had of late begun to suffer. Many persons who had been active before were now idle, wasting their precious moments on unnecessary things such as painting and sculpture. यहाँ पर भी हम सटायर या आयरनी का इस्तेमाल देख सकते हैं कि ऑथर कहते हैं कि वर्कर्स पैराडाइज के लोग जो अभी तक इतने ज़्यादा एक्टिव थे वो अब लेज़ी हो गए हैं. क्यों? क्योंकि वो यूज़लेस काम करने लगे हैं. कौन सा यूज़लेस काम? पेंटिंग और स्कल्पचर बनाने का. तो पूरा वर्कर्स पैराडाइज का जो एकदम वर्कोहॉलिक बिजी माहौल था वो धीरे धीरे चेंज होने लगा था. लोग अब शांति से बैठ के अपने दूसरे सारे काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. सो नाउ व्हाट हैपेंस? द एल्डर्स बिकेम एंग्शियस. कि वर्कर्स पैराडाइज के जो सीनियर लोग थे, जो एल्डर्स थे, उनको ये सारा बदलता हुआ माहौल देखकर उनको फिक्र होने लगी. और मीटिंग वॉज कॉल्ड कि एक इमीडिएट मीटिंग बुलाई गई और ये सारे मैटर्स डिस्कस किए कि किस तरह से लोग बदल रहे हैं. राइट. ऑल अग्रीड दैट सच अ थिंग हैड सो फार बीन अननोन इन द हिस्ट्री ऑफ वर्कर्स पैराडाइज. कि सब ने इस बात से, वर्कर्स पैराडाइज के सारे एल्डर्स ने इस बात पे एग्री किया कि ऐसी ये जो हालात अभी हैं कि लोगों के नेचर के अंदर और उनके बिहेवियर के अंदर जो इतना ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है, इतने सालों में वर्कर्स पैराडाइज की हिस्ट्री में ऐसा कुछ कभी देखने को नहीं मिला. द एरियल मैसेंजर हरीड इन, बोर्ड बिफोर द एल्डर्स एंड मेड अ कन्फेशन. ये मीटिंग जब चल रही होती है और ये वर्कर्स पैराडाइज के बदलते हुए माहौल के बारे में जो डिस्कशन हो रहा होता है, तभी वो एरियल मैसेंजर यहाँ पर आ पहुँचता है. ये एरियल मैसेंजर वही है जिसने गलती से हमारे आर्टिस्ट को ये वर्कर्स पैराडाइज में पहुँचा दिया था. राइट. सो भागता हुआ जल्दी से वो एरियल मैसेंजर वर्कर्स पैराडाइज के सारे जो एल्डर्स हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके सामने आके एक कन्फेशन करता है, कुछ एक्सेप्ट करता है. वो मानता है अपनी गलती. क्या कहता है वो? I brought a wrong man in this paradise, he said. It's all due to him. वो आके अपनी गलती मानता है. वो कहता है कि मैं एक गलत आदमी को इस वर्कर्स पैराडाइज के अंदर ले आया और ये जो कुछ भी हो रहा है, वर्कर्स पैराडाइज का पूरा जो माहौल बदल गया है, लोग लेज़ी बनते जा रहे हैं, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी इस गलती की वजह से हो रहा है, इस इंसान की वजह से हो रहा है जो गलती से इस पैराडाइज के अंदर आ पहुंचा है. So, the man was summoned. He came in. और फिर ये जो आर्टिस्ट है उसको बुलाया गया और वो वहाँ पर आता है. The elders saw his fantastic dress. जो एल्डर्स थे उन्होंने उसको देखा कि अपीयरेंस ही उसका बहुत ही अलग था. उसका जो ड्रेस था वो बहुत ही अलग और एकदम सुपर्ब टाइप का ड्रेस था. His quaint brushes, his pile of paintings, and they realized at once that he was not the right sort for workers paradise. कि जैसे ही वो आर्टिस्ट आके खड़ा रहा तो ये सारे जो एल्डर्स हैं वो उसको ऑब्जर्व करने लगे और उन्होंने देखा कि उसका तो ड्रेस है, बहुत यूनिक टाइप का ड्रेस है, उसके पास बहुत अलग अलग टाइप के ब्रशेज़ हैं, वो एक पूरा ढेर है पेंटिंग्स का उसके पास. और उसको देखते ही इन सभी लोगों ने ये तुरंत इस बात का उनको एहसास हुआ कि ये जो आदमी है ये हमारे वर्कर्स पैराडाइज के बिल्कुल भी लायक नहीं है. Stiffly,
The president said, "This is no place for the likes of you. Therefore, you will have to leave at once." और तुरंत वो जितने भी एल्डर्स वहाँ पर बैठे थे, हो सकता है कि उनकी वहाँ पे कोई कमेटी होगी और उनका कोई प्रेसिडेंट होगा वर्कर्स पैराडाइज का, तो उसने तुरंत ही एकदम स्ट्रिक्टली हमारे आर्टिस्ट से कहा कि ये जो जगह है वो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है और तुम्हें इमीडिएटली यहाँ से जाना होगा। द मैन साइड इन रिलीफ एंड गैदर्ड हिज ब्रश एंड पेंट। ये बात सुन के हमारा आर्टिस्ट तो एकदम खुश हो गया, जैसे कि उसको एक शांति मिली हो, एक राहत की सांस ली हो जैसे उसने। वैसे ही उसने तुरंत ही अपना जो ब्रश था, पेंट था और अपना जो जितना भी सामान था, फटाफट एक साई ऑफ रिलीफ के साथ उसने सब कुछ उठा लिया। बट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, द गर्ल ऑफ द साइलेंट टॉरेंट केम अप ट्रिपिंग एंड सेड, पर जैसे ही वो इंसान, अपना आर्टिस्ट, अपना सारा सामान उठाकर वहाँ से निकलने की तैयारी ही कर रहा था, वहाँ से जा ही रहा था, तब कुछ अजीब सा हुआ वहाँ पर। वो लड़की जो जिसे गर्ल ऑफ द साइलेंट टॉरेंट कहा जाता था, वो अचानक से वहाँ पर आई और आर्टिस्ट से कहती है, वेट अ मोमेंट फॉर आई टू विल गो विथ यू। वो आकर उससे कहती है कि रुक जाओ, तुम अकेले मत जाओ, मैं भी अब तुम्हारे साथ आऊँगी। सो दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज दैट हैपन्स, राइट? द एल्डर्स गैस्प्ड इन सरप्राइज, कि जितने भी एल्डर्स वहाँ पर बैठे हैं सभी को ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती है। फॉर नेवर बिफोर हैड अ थिंग लाइक दिस हैपेंड इन वर्कर्स पैराडाइज, अ थिंग दैट हैड नो मीनिंग एंड नो पर्पस एट ऑल। कि वर्कर्स पैराडाइज में ऐसी चीज़, ऐसा इंसिडेंट आज से पहले कभी नहीं हुआ था कि ये आर्टिस्ट ऐसा है जो एकदम यूजलेस काम करता था, राइट? ऐसे काम करता था जिसका कोई मीनिंग नहीं था, कोई पर्पस नहीं था, और अब ये लड़की जो है वो भी उसके साथ जाना चाहती है। इससे एवरीवन बिकम्स एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, और ऐसा इंसिडेंट वर्कर्स पैराडाइज में कभी भी देखने को नहीं मिला था। और यहाँ पर ही हमारा चैप्टर जो है, ये स्टोरी जो है, वो ख़त्म होती है। बट फ्रॉम दिस चैप्टर वी कम टू नो दैट द ऑथर रविंद्रनाथ टैगोर ट्राइज टू टेल अस कि लाइफ के अंदर दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। वर्क भी इम्पॉर्टेंट है एंड एट द सेम टाइम लीजर, फ्री टाइम, रिलैक्सेशन का टाइम भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट? एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन लेजर एंड वर्क, राइट? कि लेजर, आराम, और अपनी हॉबीज़ और अपना जो भी अपना शौक़ है उसको कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और काम भी इतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट? पर दोनों के बीच में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ काम ही करते रहे और लेजर के लिए या फ्री टाइम ही हमारे पास ना हो और किसी चीज़ के लिए हमारे पास टाइम ही ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बस हम फ्री रहे और कोई यूज़फुल काम ना करें। ओके, सो he tries to give a very important lesson, right, through this story. So it is also a satire over here, जो मैंने कहा था कि यूजुअली हम ऐसा मानते हैं कि जो पेंटिंग है और जो स्कल्पचर है या जो भी आर्टिस्ट जो काम करते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं है या उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इट इज़ जस्ट टाइम पास। बट दैट इज़ नॉट ट्रू। वो भी एक अलग ही तरह का काम है। ओके, एंड वी शुड वैल्यू द स्किल्स and the work of all the artists. So that is the end of the story. I hope कि यहाँ तक आपको क्लियर है और ये पूरी स्टोरी आपको समझ में अच्छे से आई है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कभी भी पर्सनली मुझे पूछ सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।